Hi everyone, I am Vipin Kumar and I welcome you all to this lecture series of thermodynamics. Now, in this particular session, we are going to discuss a very important topic, which is what is the difference between first and second law of thermodynamics. Now, you may know what is first law individually, it is energy conservation law. You may also know what is the second law, which is Kevin Planck's and Clausius statement and the concept of entropy, but it is very, very important to make a distinction between first and second law. What was the requirement that the first law did not satisfy? So we need to come up with the second law. Okay, so this is what we are going to discuss in this session. And before we proceed further, again, I would like to tell you that you can join my Telegram channel if you have any doubt regarding GATE, PSUs, ESC, or any other general doubt. If you are in the preparation phase, you can ask me directly. You can connect through my Telegram channel and you can ask. Chalo. Before we move ahead, let me give you a brief introduction. So I have around 5+ years of teaching experience. I have done my MTech from IIT Kharagpur. I've done my MSc from Politecnico di Milano. I have around 3.5 years of cumulative research and industry experience, few research publications, national as well as international, and my area of expertise is basic and applied thermodynamics and heat transfer. Okay, so now, so what is first law? Tell me. First law is simply the energy conservation law. ठीक है? इस यूनिवर्स की एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड. It is not going to increase, it is not going to decrease. Okay, now we are not talking about conversion, we are not talking about the degradation of energy, just the energy. If we talk about energy, energy will remain conserved. It can convert from one form to another, that is a different story, but the total energy of the universe will remain. So I can write here that the total energy of the universe is constant. Okay, it cannot be created nor be destroyed. ठीक है? अब दिक्कत क्या है इस स्टेटमेंट में? What was the problem? What was the issue with this statement? And what are the answers that first law was not able to provide? That we had to come up. We were seeing those phenomena in front of our eyes, but the first law was not able to explain those phenomena. So that we have to come up with the second law that will explain those phenomena. So what are these phenomena? These phenomena are, first of all, direction, feasibility or the possibility of the process, and the quality of the energy. Quality of the energy. ये तीन इश्यूज को फर्स्ट लॉ एड्रेस नहीं कर पाया, इसीलिए हमें सेकंड लॉ लाना पड़ा. तो एक एक करके समझते हैं, क्या है डायरेक्शन, क्या है फिजिबिलिटी, क्या है क्वालिटी. ठीक है, चलो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन, सो यू सी, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ कहता है, द फर्स्ट लॉ सेज दैट इफ यू हैव दिस बॉडी A and you have this another body B, और देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस. ये T1 पे है, ये T2 पे है, एंड T1 is not equal to T2. That means there is a temperature difference between these two bodies. तो फर्स्ट लॉ आपको सिंपली ये बता देता है कि अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो फिर हीट ट्रांसफर होगा, तो इनके बीच में हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर होगा. ठीक है, अब दिक्कत ये आई है कि ये किस डायरेक्शन में होगा, फर्स्ट लॉ आपको ये नहीं बता रहा है. फर्स्ट लॉ आपसे पूछ ही नहीं रहा है कि हायर टेम्परेचर क्या है, लोअर टेम्परेचर क्या है. हीट ट्रांसफर ए टू बी हो रहा है या बी टू ए हो रहा है. फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कह रहा है अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगा, दैट्स ऑल. तो इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट लॉ इज नॉट अ डायरेक्शनल लॉ. इट इज नॉट अ डायरेक्शनल लॉ. अब जब सेकंड लॉ
की हम बात करते हैं तो सेकेंड लॉ एक्चुअली पुट्स अ रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड लॉ हमेशा आपको ये बताता है कि हीट ट्रांसफर विल ओनली हैपन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड लॉ विल आस्क यू which temperature is higher. So if I tell you T1 is greater than T2, तो हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन ऐसी होगी, दैट्स ऑल। ऐसी कभी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि T2 आपका लोअर टेम्परेचर है, ये T2 जो है ये लोअर है T1 से। So heat transfer can never go from low to high temperature. So second law puts a restriction on the direction of energy transfer. ये बात समझ में आई? फर्स्ट लॉ डायरेक्शन की बात नहीं करता। फर्स्ट लॉ कहता है टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट ट्रांसफर होगा। सेकेंड लॉ कहता है टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन हायर टेम्परेचर क्या है, लोअर टेम्परेचर क्या है। और वंस आई टेल देम कि हायर टेम्परेचर ये है, लोअर टेम्परेचर ये है, तो सेकंड लॉ आपको ये बता देगा कि हीट ट्रांसफर विल हैपन ओनली फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। द रिवर्स इज नॉट ट्रू। अब इसमें एक जो है इट इज अ प्रॉब्लम। It is saying that the reverse is not true. That means heat transfer can never happen from low temperature to high temperature, but naturally it can never happen. आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी दे दो तब करवा, क्योंकि आपके पास अगर घर में एक फ्रिज है तो फ्रिज क्या कर रहा है, फ्रिज के अंदर ही टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, बाहर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हीट ट्रांसफर फ्रिज कर रहा है फ्रॉम 5 डिग्री टू 25 डिग्री। दैट मीन्स लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। लेकिन कैसे? क्योंकि यू आर गिविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क टू इट। नेचुरली नहीं कर रहा है। अगर आप उसे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई नहीं दोगे तो वो नेचुरली नहीं सप्लाई करेगा लो टू हाई। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो कि सेकंड लॉ आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड लॉ इज द डायरेक्शनल लॉ। ये आपको डायरेक्शन बताता है प्रोसेस की, और ये आपसे ये कहता है कि एनर्जी ट्रांसफर विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे कि अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, दैट्स ऑल, नेचुरली। ठीक है, तो एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात आई फीजिबिलिटी की, फीजिबिलिटी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉ हमें ये कह देता है, हमारा फर्स्ट लॉ ये कह देता है कि जब भी एक सिस्टम में एक प्रोसेस हो रहा है, अगर मेरा एक सिस्टम एक प्रोसेस कर रहा है तो एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि मान लो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ करंट सप्लाई कर रहा हूं और ये मेरा रेजिस्टेंस है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और कुछ जो है करंट फिर यहां आ गया। ठीक है, ये हीट लॉस हो गया। सो जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। सो अगर मैं कहूं आई इन, तो ये हो जाएगा आई इन इज इक्वल्स टू आई आउट प्लस क्यू लॉस। मैं अभी इसकी यूनिट्स जो है वो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इज इक्वल्स टू, लेट मी राइट इट द अदर वे, कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं दे रहा हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन विल बी इक्वल टू क्यू लॉस प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउट। ठीक है, लेकिन अब ये प्रोसेस होगा या नहीं, ये फर्स्ट लॉ मुझे नहीं बता रहा है। फर्स्ट लॉ के हिसाब से, फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर मेरे पास ये सर्किट है और मैं इसे हीट दे दूं तो ये इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है।
फर्स्ट लॉ के हिसाब से। लेकिन सेकंड लॉ कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बात समझ लो। एक बार और बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि फर्स्ट लॉ आपसे कहता है कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। अब वो प्रोसेस होगा या नहीं, इफ द प्रोसेस इज इवन feasible or not, first law is not giving any information. First law is not giving any information. It is the second law that is coming and saying कि if the entropy of universe, I'm sorry, entropy S, if the entropy of universe is greater than equal to zero, जब ही वो प्रोसेस पॉसिबल है और जब ही उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। समझ में आया कि अगर पॉसिबल फीजिबल कब होगा, ये हमें सेकंड लॉ बता रहा है। कब होगा, जब ये है, अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स लेस देन जीरो है तो प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप इसकी एंट्रोपी चेक करोगे तो इट विल बी लेस देन जीरो एंड देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई? तो पहला हमने देखा डायरेक्शन। फर्स्ट लॉ हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा, सेकंड लॉ बता रहा है। ऐसे ही फर्स्ट लॉ हमें प्रोसेस की पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बता रहा है, सेकंड लॉ बता रहा है। अब लास्ट है क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में। तो यू सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is a quantitative law. Quantitative, it talks about the amount of energy. ये किसके बारे में बात करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी के बारे में। बात समझ में आई? ये सिर्फ ये कहता है कि अगर मेरे पास एक यूनिट ऑफ एनर्जी ये है, फॉर एग्जांपल ये कहता है कि मेरे पे एक यूनिट, 1 unit ऑफ हीट इज इक्वल टू 1 unit ऑफ वर्क। अगर मेरे पे एक यूनिट हीट है, इट इज इक्वल्स टू 1 unit ऑफ वर्क। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कन्वर्ट कर सकता हूं वर्क में। हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क विल बी कन्वर्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ये सिर्फ अमाउंट की बात करता है, ये नहीं देखता कि क्वालिटी क्या है एनर्जी। ये कहता है कि अगर मेरे पे एक यूनिट ऑफ एनर्जी ये है, दूसरी यूनिट ऑफ एनर्जी ये है, तो मैं इन्हें कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू ईच अदर। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, हमने अपनी नेचर में क्या देखा है? हम अपनी नेचर में ये देखा है दैट हीट इज ऑलवेज लॉस्ट। अगर मैं ये भी कर रहा हूं, मैं अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी, अपनी फिजिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा हूं टू डू दिस वर्क। ये मैं वर्क कर रहा हूं, भाई मेरे पास फिजिकल एनर्जी है, मैंने खाना खाया, वो फिजिकल एनर्जी थी, उससे मैं ये वर्क कर रहा हूं। दिस मूविंग ऑफ हैंड इज द वर्क। लेकिन जब मैं ये कर रहा हूं तो हीट इज जनरेटेड because of friction and heat is lost to the surrounding। ठीक है, तो heat is always lost to the surrounding, that is called as lost energy। तो जब भी आप हीट, हमने ये अपनी नेचर में देखा है कि जब भी आप हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, सम हीट इज ऑलवेज लॉस्ट। सो यू सी क्यू, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं वर्क में तो कुछ लॉस भी होगा, क्यू लॉस भी। ठीक है, तो ये because this is non-zero, q in is not equal to work transfer। जबकि फर्स्ट लॉ कह रहा है ऐसा होता है, क्योंकि वो बात कर रहा है क्वांटिटी के बारे में। उसके लिए ये और ये देयर इज नो डिफरेंस, बट देयर इज अ डिफरेंस। ओके, क्योंकि सेकंड लॉ आपकी एनर्जी को क्लासिफाई कर देता है हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी। सेकंड लॉ कहता है कि ऑल द एनर्जीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड एनर्जी, एंड हाई ग्रेड एनर्जी कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लो ग्रेड एनर्जी, बट लो ग्रेड एनर्जी कैन नेवर बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, तो हमारा हीट क्या है,
ये है लो क्वालिटी या लो ग्रेड एनर्जी, और वर्क क्या है, हाई क्वालिटी या हाई ग्रेड एनर्जी। तो Q कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, नॉट पॉसिबल, बट वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, क्योंकि ये हाई ग्रेड एनर्जी है, ये लो ग्रेड एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है जो हमें फर्स्ट लॉ बता रहा है। सही क्या है, हमने ये अपने नेचर में देखा है, तो ये सही है। और ये कैसे एक्सप्लेन होता है, बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, these are few things that you need to understand because it is a very important interview questions. अगर वो आपसे पूछ रहा है, they are asking you what is the difference between the first law and second law, so they want to hear this. They do not want to hear कि second law is the first law is the law of conservation of energy, second law is the Clausen statement. Everyone knows that. That is bookish knowledge. We all know this. वो तो आप कोई स्टेटमेंट पढ़ लोगे तो आप बता दोगे, बट इंटेलिजेंस इज नोइंग द बेसिक्स ऑफ द डिफरेंस, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इफ यू वांट मी टू समराइज इट, then I can say that first law is necessary. First law is always necessary, but second law puts an extra restriction in terms of direction, in terms of feasibility, and in terms of quality. और जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी, if both the laws are satisfied, then only the process is possible. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर सेकंड लॉ वैलिड है तो फर्स्ट लॉ इनवैलिड हो गया, नहीं। अगर फर्स्ट लॉ वैलिड है तो सेकंड लॉ इनवैलिड हो सकता है, यस, बट सेकंड लॉ वैलिड है इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। फर्स्ट लॉ वैलिड है, सेकंड लॉ वैलिड है, देन ओनली द प्रोसेस विल हैपन। फर्स्ट लॉ इनवैलिड है, सेकंड लॉ इनवैलिड हो जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ लो कि सेकंड लॉ पुट्स एन एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन ऑन द फर्स्ट लॉ टू अंडरस्टैंड और टू टेल यू इफ द प्रोसेस इज फीजिबल और नॉट। अगर सेकंड लॉ वैलिड है, ओनली देन द प्रोसेस विल बी feasible. Okay, so I hope you enjoyed this session. I hope you understood the difference between the first law and second law. Okay, and it will be very, very important for you. It will be very, very useful for you in terms of interview questions, or it is also important from gate point of view. Okay, first law is not a directional law, second law is a directional law. First law is a quantitative law, second law is a qualitative law. First law does not tell you about the feasibility of the process, second law tells you about the feasibility of the process in terms of entropy. Okay, तो ये difference आप समझ लो और your life is sorted. Okay, चलो ठीक है, so we are going to see you in the next session as well. We are going to move ahead, okay, to understand what is second law, what is entropy, what is available energy, and all these things. So I am going to see you again. Thank you very much.